Gursima's Gupshup, Friday the guest day. And yes, I've got an adorable girl over here as a guest for Gursima's Gupshup. So before I introduce her, I would just like, she is a budding mathematician. And in future, she's gonna be a staunch mathematician, I'm quite sure. Hey, you please don't go about her looks. She seems to be so young. But yes, she is mature in maths. I have seen her work. So before we move ahead, I want her to, introduce herself to you. So we have a segment, Rubaru. So सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी हमारे segment में रूबरू. हो जाए जी, दसो please. Thank you, ma'am. Thank you so much for your warm welcome. Hi everyone, my name is Anujeet Kaur and I am right now pursuing MSc Maths in DAV College. I have done my studies from BBK DAV College and senior study. Okay, senior study 2 years schooling. Yeah. So your schooling was from senior study 2. Okay. Senior study 1, senior study 2 and junior study. Since Okay. But right from the... Yeah, right from the starting I have been in senior study. Senior study. And that school is really close to my heart. That school is really close to your heart. Yes. Okay. And besides this study and all, I am not that kind of student जिसको बहुत जुनून होता है पढ़ने का. हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन. But I got to know you're doing masters MSc in mathematician. अभी जिसको जुनून, एक तो subject mathematician, जिससे मेरा तो दिल करेगा कि हमेशा बंक कर लो, एंड उसके बाद आप उसमें मास्टर्स कर रहे हैं, यू डूइंग एमएससी इन मैथमेटिक्स. और अभी प्लीज आगे की कहानी. मतलब जैसे कई बच्चे दे आर लाइक बुक वॉर्म्स, पूरा टाइम बुक्स में, है ना. तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट. मेरे को है कि पढ़ना भी है, साथ में एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए. पूरा टाइम नहीं पढ़ना सिर्फ, मतलब पूरा टाइम बुक्स के अंदर नहीं. हाँ, वो नहीं करना. But still she is doing so good and so well, because I have seen the children of my locality over there, everyone is running towards her home कि इसी दीदी से मैथ्स हमने पढ़ना है, इसी दीदी से हमने मैथ्स की ट्यूशन रखनी. I am surprised, and I was of the view that Anurik must have done her masters, must have completed her MSc, because the children are so happy. My younger brother, my siblings, they also go and they are so excited. They feel they can understand maths very well from her. So it means she has got the knack of maths, knack of that thing. So that's really nice. अच्छा, please बोलें. And ये तो थी पढ़ाई की बात. Apart from this, I like reading and writing. Reading and writing, क्या पढ़ना अच्छा लगता है? Novels, किसी भी तरह के, किसी भी जनरल के. Like you are किसी भी genre के, you want to go for the novels, and novel reading खूब करते हो? बहुत ज़्यादा. I can finish a novel in one day. इतनी मोटी भी चलेगी मेरे को. अच्छा. I love books. You love. Okay, so that's a bibliophile. Yeah. And you don't. It's not like कि चल like मेरे जैसा बंदा 2 पढ़ लेगा, pages 4 पढ़ लेगा. अगले आपको चाहे whole night you will read. Yeah, my mom is always after me. बस कर दे, आंखों पे असर हो जाएगा, मत कर, इतना नहीं पढ़ते एक साथ. बट नहीं, मेरे को नींद नहीं आती तब तक जब तक मेरे को स्टोरी का सस्पेंस खत्म नहीं हो जाता ना. Oh, that's right. And in English you prefer? Yeah, prefer in English. You prefer the so any one novel that you find, or any one of the reading material that is still in your memory, and still it has created that created some picture or carved some sketch in your mind, please share. There are many stories, mostly इतना वो inspiring वाला नहीं रहता, but some stories like my favorite writer is Ruskin Bond. Ruskin Bond. Okay, he lives in Missouri, and Missouri is my favorite place. Yes, even mine. Missouri is beautiful. Hills. Yeah, I love hills. I call that my second home. Okay. I visit there every year, almost every year. Every year. Okay. So he is writer of that place, and उसकी books मैंने पढ़ी हैं, and he has written a book, Roads to Missouri. अच्छा. It has so many touching stories in that कि मतलब वो पढ़ के बंदा इतना इंस्पायर होता है. एंड व्हेन आई रीड दोस बुक्स, उसकी मैंने जब पढ़ी तो मेरे को था कि मैं उसको मिलना चाहती हूँ. ओके. आई बिन मसूरी में ना देयर आर 2 बुक शॉप्स टुगेदर. वहाँ पे एवरी थर्सडे देयर इज अ मीट एंड ग्रीट विद रस्किन बॉन्ड. ही कम्स एंड मीट्स हिज फैंस. तो आई हैव बीन देयर. मतलब मैं ट्रिप ही वैसे प्लान करती हूँ कि बीच में कोई थर्सडे आ जाए, मेरे को उसको मिलना है. And I've been trying this from last 7 to 8 years, you can say, कि उसको मिलना मैंने. हाँ. तो कभी मैं जाती हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जैसे पापा ने ट्रिप प्लान करके उसमें थर्सडे नहीं आया, ऑफ नहीं था तो थर्सडे नहीं आया. 2-3 बार ऐसे निकल गया. जब थर्सडे आया, वेदर खराब था, वो मीट एंड ग्रीट करने नहीं आया. मैं वहाँ स्पेशल गई. देन मैं दोबारा गई तो कोविड था, उसके कारण नहीं आया. एंड अभी रिसेंटली मैं 2 वीक्स पहले मसूरी होके आई हूँ. थर्सडे था, उसमें मैं बुक शॉप पे गई हूँ. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आना बंद कर दिया, अब नहीं आते.
तो मेरा सपना तो वहीं पे रह गया, बट आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम। वो स्टोरीज, वो मतलब जिस चीज़ को आप चाहते हो, जिस चीज़ का आपको है अटैचमेंट है जिस चीज़ से, उसके बारे में आप कुछ पढ़ो और जानो तो आपको और You ज़्यादा feel good. attachment So है ना। it means Ruskin Bond. Yes, of course, we have read the stories even in my school time, the college times. Ruskin Bond, whenever the literature is there, Ruskin Bond stories are always inspiring, and I suppose this would be the same, thought process for all the students or all the readers. And yes, I hope and I wish that in coming times you could meet Mr. Ruskin Bond and just give a call to me while you'll be meeting. I would just like to share a hello because yes, I really value such people. We ought to value. चले, ये सारी बातें होगी पढ़ाई की. अब at present what exactly you are doing? I am doing MSc in mathematics. ये तो पता चल गया. इसके सिवाय I teach tuitions at home. This was the questions. आप MSc कर रहे हो मैथमेटिक्स की, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाली चीज़ है, राइट? सुबह जाते हो, क्लासेस लगाते हो, फिर आप कब, व्हेन यू गेट बैक एट योर प्लेस, कब आते हो वापस? 2:30. 2:30 बजे वापस आए. ट्यूशंस कब शुरू करते हो? 3 o'clock. 3, मतलब आधे घंटे के बाद 3 o'clock की लड़की ट्यूशन शुरू कर देती है. ये पैसों का लालच है कि पापा ने बोला है कि पढ़ाने का लालच है। That was my first thing I wanted to ask. यार तेरे को पैसे का लालच है, तू आधा घंटा रेस्ट करके you start with the tuitions, and especially the type of the kids she's dealing with, they are very naughty because the age group is, they are the teenagers, budding teenagers वाले वो 13, 14, 15 साल के बच्चे, they are तो like hell to handle. Yes, I can say that. Actually, the thing is, I don't have any siblings. I'm the lone child of my family. Okay, you are the single child. Yeah, single child. तो घर पे it's basically me and mom always. Okay. जब से बच्चे आने स्टार्ट हुए हैं घर में रौनक सी आ गई है। मैं उनको पढ़ाती हूँ। एक तो अगर मेरे माइंड में कोई स्ट्रेस है ना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अगर मेरे माइंड में कभी कोई स्ट्रेस है, मैं उनको पढ़ाती हूँ। टीचर्स नॉर्मली गुस्सा निकाल देते हैं बच्चों पे या कुछ, हाँ. मैं उनको पढ़ाती हूँ, मेरा माइंड लाइट हो जाता है। हाँ. पता नहीं कैसे, कोई मैजिक है इस चीज़ में या कुछ। मैं उनको, मम्मा बोल लगे कि थकी हुई है तो इतने स्ट्रेस में ऑफ कर दे, मैं ऑफ नहीं करती, मैं उनको पढ़ाती हूँ, मेरा माइंड वो खुद ही शांत कर जाते हैं। वो इतना वो तंग करके, इतना हंसाकर, चिल्ड्रन आर, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज किसी भी बच्चों का टीचर के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग होना कि वो शरारतें करें, वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करें, वो ज़्यादा बोले, उसके बावजूद वो स्टडी करें और मार्क्स फिर भी इनके स्टूडेंट्स के अच्छे आते हैं. सो वो ऐसी बॉन्डिंग होना, इट मीन्स शी इज़ अ रिमार्केबल ट्यूटर. I called you as a budding mathematician, but yes, you are, in the coming times, you may mark your niche in it. You may create that, curve which may go higher and higher. बच्चों की मेहनत है मैम, हमने तो सिर्फ कराना ही है। बच्चों की मेहनत है. So, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से कोई सबसे ज़्यादा शरारती है, उसकी कोई नोटी वाली बात याद? हाँ है ना, ट्यूशन की 10th का एक बैच है छोटा सा. Okay. 3 बच्चे हैं उसमें. हाँ जी. तो उसमें एक लड़का है ईशरप्रीत सिंह. ईशरप्रीत सिंह, ओके. तो वो आप कह लो ही ट्यूशन की रौनक एक तरह से. अच्छा. ट्यूशन में नहीं आता, शांति रहती है. अच्छा. आता है तो वो ऐसे बच्चों को मच्छरा देता है जैसे पता नहीं क्या. थोड़ा टाइम पहले ना इनके एग्जाम्स थे तो 10th ट्यूशन पे नहीं आ रही थी, छोटे बच्चे आ रहे थे. तो एक दिन ना ये लोग वापस आए कि अब से हमने कंटिन्यू करना है. आके छोटे बच्चे बैठे पड़े चुपचाप पढ़ रहे हैं. ईशर आके पूछता है, मैम तुसी तो बड़ी शांति की ट्यूशन थे. मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मैम, छोटे बच्चे खुद बोलते हैं तुसी जो नहीं आंदे वैसे. So sweet. बाद ही वहाँ पे आके खत्म हो जाता है. तुसी जो नहीं आंदे. So it means yes. See, this is the comfort level which only teacher can make, that students can express their thoughts randomly and openly. Yeah. So I wish that in coming times you will be a very very good tutor, and as I mentioned, as a staunch mathematician. कॉलेज की कोई ऐसी बात that you would like to share? कॉलेज में how you are, otherwise like it's like an introvert, extrovert, ambivert sort of person? I used to be a very extrovert person पहले. अच्छा. अब नहीं, अब I'm too much introvert. Because of your work that you have? नहीं, not of the work, because of the life experiences I gained at such a small age. What we would like to listen, because gupshup is all the gupshup, please. Actually, जैसे मेरा नेचर है, I get attached to people too quickly. Too quickly. बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत जान निछावर करने वाला नेचर होता है ना वैसा, कि आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प. You could help, right? तो ऐसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स रही हैं मेरी. 10th में भी थी एक, +2 में भी थी. पता नहीं आफ्टर सडन टाइम डिफरेंस आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, एंड यू कैन से दे लेफ्ट. तो उनके जाने के बाद वो जो वॉइड सा आ जाता है ना लाइफ में, वो मेरे पेरेंट्स को बहुत तंग करता है. मेरे को तो करता ही है.
मेरे को ऐसे देख के मेरे पेरेंट्स को वो बहुत तंग करता था। मतलब you are this is what this sensitiveness, see, this is a materialistic world. People come, they make the relationship, they break, they go. Yeah. Right, but there are certain people who value the every bond, and I feel that God has blessed you with that nature, because you feel if someone is missing, you feel that void. If someone has come, you feel that warmth. So I think it is a very, very plus point of life, and I do agree that such people, they have to face certain times, they have to face some pains, Yeah. some some tricky things you have to face. So चलें। that, वो जो void रहता है ना, वो मेरे को तो करता ही है तंग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक। Right. तो Extreme level तक। हाँ, मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा Because they get worried looking at your उनके position. लिए तो मैं ही हूँ ना एक, Right. उनका सब कुछ मेरे अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सो दे गेट टेंस्ड, एंड जब मैं उनको इस बार रिसेंटली जब ये हुआ था अराउंड 3 to 4 years बैक, मेरी एक फ्रेंड के साथ बहुत ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरी, एंड देन यू एवरीथिंग अबाउट, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं उनको हर चीज़ शेयर करती हूँ, वन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। मेरे फ्रेंड्स मेरे को डांटते हैं कि तुम हमारी बातें भी उनको बता देती है, Okay. बट स्टिल मैं उनके साथ टचवुड इतनी ओपन हूँ। Okay. Any sort of thing you will share हाँ, एनी सॉर्ट ऑफ, with your mom or dad दोनों equally. इक्वली। Whatever. हाँ, What? चलो इनसे बारे में बात करते हैं बाद में। हाँ जी। तो ऐसे ना उनको देख के फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद तो तंग हो ही रही हूँ एंड उनको भी कर रही हूँ, तो फिर मैंने खुद को थोड़ा सा अपने आप में लिमिट करना स्टार्ट करा कि Okay. नहीं, हर किसी के साथ ऐसे फ्रेंडशिप नहीं करनी, अटैच नहीं होना, क्योंकि दुनिया ऐसी है, यू डोंट नो कब को कौन छोड़ जाए आपको, This is the life's है ना। experiences. तो फिर मैंने फिर कहा कि नहीं, बस अब इससे ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी। मेरे है ना ऑनलाइन, मैं अपना इंस्टा वगैरह पे कोई जैसे पेज, फैन पेज टाइप्स है, वो चलाती हूँ, उनका बड़ा सर्कल था मेरा उनके साथ, मैंने उन सबसे भी बात करनी कम कर दी, बिकॉज आफ्टर अ टाइम फील होता है वो है भी ऑनलाइन फ्रेंड्स, उनको कोई जानता नहीं है क्या है, तो उनसे भी बहुत कम कर दिया। मैं जाती हूँ, सिर्फ एक रीसेंट अपडेट डालती हूँ मेरे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर के बारे में, एंड आई कम बैक, लॉग आउट कर देती हूँ, इतना रहता है मेरा। तो उसके बाद अभी जैसे मैंने MSc में आई टुक एडमिशन, तो मैं ये सोच कर गई थी कि आई वोंट मेक एनी फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ द मोटो। मैं अभी भी उसी पे चल रही हूँ, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन क्लास। उनको लगता है, आई डोंट नो क्या लगता है, कि मैं बहुत अकड़ू या हाँ, they must be feeling that you have got that very stubborn nature, Yeah. कि you are very, very But now I don't arrogant. नाउ आई डोंट केयर, जो मर्जी सोचे। अच्छा, but okay. बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में एक टाइम पे आके उनके साथ बॉन्ड बनाने का ट्राई करा था, बट दे आर लाइक काम है तो बात करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो ऐसे फ्रेंड्स किसको चाहिए। Okay. सो आई ओनली हैव वन फ्रेंड इन द क्लास, बस उसके साथ ही रहती हूँ, दैट्स इट। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बनी। You are an introvert person. एक्सट्रोवर्ट चेंज्ड इनटू एन इंट्रोवर्ट, Yes, an extrovert who converted into an introvert, एंड आई एम हैप्पी लाइक दिस। and you are happy. So these are the life's experiences. Dream क्या है life का? Ultimate dream. What exactly would you like to do or have in life? अल्टीमेट ड्रीम, Everyone is having that, वो कुछ होता है ना कि this is something in the heart, कि ऐसा होना है, this is the end, उससे राज, this is what. एक लाइन में सम अप करूँ तो जो मर्जी करूँ मैं आगे जाके, जैसे मेरे को रब जी मेरे को बोलेंगे, जहाँ लेके जाएंगे, आई नो ही हैज़ प्लान्ड मेनी बेटर थिंग्स फॉर मी, जिससे मैंने सोचा Okay. है। वॉट एवर आई डू, आई जस्ट वॉन्ट दैट प्राउड स्माइल ऑन माई पेरेंट्स Wow. फेस, कि ये हमारी बेटी है, इसके नाम से हम जाने जा रहे हैं। Wow, That's this it. is the ultimate thing. That's That it. wherever you go, whatever you do, you want that it should create an ultimate smile on your parents. That proud feeling should be That's it. sparkled on their face. Saranam, you are lucky. You have got such a adorable and such a beautiful daughter who actually cares. Her every thought is around you, and I Nothing really values appreciate it. that. मतलब उसके पास कुछ नहीं आता, उस It smile is का, it's incomparable. priceless. It is incomparable. Okay. मम्मा या पापा के साथ कभी लड़ाई होती है? बहुत बार। बहुत बार होती है, बिकॉज आई वाज वॉन्डरिंग, जो इतना क्लोज बंदा है एंड सो अंडरस्टैंडिंग इज सो गॉड, तो फिर तो लड़ाई शायद ना होती हो। लड़ाई होती है, लड़ते हो, किससे ज़्यादा होती है? पापा से। वाह, इसका मतलब पापा की लाडली है, क्योंकि पापा, आर यू दैट लाडली वाली डॉटर ऑफ योर फादर? हाँ, मम्मा की दोनों की, बट पापा से ज़्यादा, पापा से ज़्यादा, पापा से लड़ाई भी ज़्यादा। तो कैसे लड़ाई होती है और किस टॉपिक पे लड़ाई होती है? टॉपिक ऐसा कुछ नहीं रहता, सेंसलेस बातें होती हैं, जैसे मतलब पापा को ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। Okay. तो उनकी जीन्स मेरे में है,
अच्छा वो बोलेंगे तो मैं भी साथ में शुरू हो जाऊंगी, वो चुप करेंगे तो मैं भी चुप कर जाऊंगी, ऐसे रहता है। अच्छा, हाँ। so how your mom manages both the equal? अलग अलग रूम में बिठा देते हैं, आप तो दोनों पे शांत करेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेके आएंगे, And then you will have a dinner together. हाँ चलो अब हक करो, लड़ाई सॉल्व करो, ये करो। Okay, so it's that loving bond. आजकल जो चल रहा है, जो सिस्टम, because it's a the world is being advanced, the modernization has come. People are, you know, all the students or the children of the young generation, you know, they want to fly high in the sky and they want to stay a bit away from their families to make their own future, right? Could be abroad, could be even in the same city. They feel nahi ki we need our own space. So what do you have to say about it? +1 +2 तक तो आई हैड अ ड्रीम कि अब्रॉड जाना है, बहुत ज़्यादा वाला जुनून चढ़ता है ना टीनेजर्स को। हाँ, चढ़ता है, अब्रॉड जाना, चढ़ा था, बहुत ज़बरदस्त वाला चढ़ा था, बहुत ज़बरदस्त वाला। तो मेरे दादू से बात करी थी, एक्चुअली ही इज़ माय कज़न दादू, तो उनकी भी बहुत लाडली हूँ मैं। सबकी लाडली है यार ये। तो हमारा एपिसोड तो हिट होने वाला है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और जो लाइक्स हमें मिलने वो इसी एपिसोड के मिलने, मुझे लगता। हाँ जी। तो दादू दादी के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो उन्होंने बोला था किस्मत पे छोड़ दो, इसी किस्मत में होगा तो ये चली जाएगी, अभी मत सोचो, क्योंकि मम्मा पापा ने कहा था वो बहुत जिद कर रही है जाने को। ओके। तो रिसेंटली उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि चल हम तेरे को बाहर बुला लेते हैं, वो फॉरेन ही रहते हैं, जो फॉरेन नहीं देते हैं। हाँ, तो बाहर बुला लेते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू कम। बट अब ना आके एक जगह पे रियलाइज हुआ है कि नहीं, पेरेंट्स से दूर नहीं जाना, बाद में तो जाना ही है, बाद में तो जाना ही, अभी भी चले जाओगे तो फिर उनके पास कौन रह जाएगा पहले। Yes, तो they have given the quality of their life only to you. They have invested the best whatever they had. उनका वर्ल्ड मेरे आसपास घूमता है। Exactly. तो फिर मैं ही बीच में से निकल जाऊंगी तो क्या That's रह so जाएगा ना? sweet of her. She is such an adorable and responsible daughter. That's what I can, you know, it's something being very emotional, but yes. Okay, so then you thought to drop that thing and यही her eyes have become a bit teary and you know, even I am a sensitive daughter, so that's what I could, even I for a time, even I took the pause की चलें, मुझे ये बताओ, इससे थोड़ा हटकर हल्की सी बात करते हैं, like if you get the chance to make a boyfriend, right, so what would you go, what options would you like to go for? लॉयल होना चाहिए, और that's it, only loyal? क्योंकि लॉयल्टी दिखी नहीं ना मेरे को, मेरे फ्रेंड्स में तो नहीं दिखी, लाइफ पार्टनर में तो रहनी चाहिए। So you want that person should be good for the loyalty should be there. एंड दैट लॉयल्टी, वो क्वालिटीज अगर मैं एक लाइन में सम अप करूँ सारा इतना बताने से अच्छा पापा की फोटो स्टेट होना चाहिए। So that's what I said. She is very close to the heart of her dad, and the image of dad is always, daughters are always like this. What they get from their father, they always would like to. This thing should be at least. उसका अगर वो इतना you know कैनवस है आपके डैड, उसके कुछ कलर्स यू रियली वांट इन योर लाइफ पार्टनर। अगर उसका पापा का 10% भी होगा ना, बहुत होगा मेरे लिए, बिकॉज मैं कोई चीज़ मुंह से निकालती नहीं हूँ, मेरे लिए पहले घर पे आ जाती है। तो मैं मतलब उसका हल्का सा भी पापा की क्वालिटीज उसमें होंगी ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। दैट्स सो स्वीट। तो ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, कुछ nothing. That's really sweet, because these days girls are so, you know, they have so many views, so many, you know, notions and the ideas about it, and she summed up in one line कि पापा की कॉपी होना चाहिए, ज़्यादा कुछ कमाए नहीं, but ठीक है, he should be loyal, he should be good enough, yes of course अपने पैरों पे खड़ा हो, but then it's like you know, in a beautiful words you summed up your vision regarding a life partner. So we wish you good luck that in coming times you get a good person, and जब भी शादी होगी हमें बुलाएगी, फिर हम गपशप में ऐड कर देंगे यार इसकी फोटोग्राफ, we will add it. Editing will be done by Varinder Singh. He is the person जो कैमरे के पीछे आपको अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज मैं पहली बार एपिसोड में उसका नाम मेंशन कर रही हूँ। Varinder Singh is my person who is a camera man also, as well as for editing also. He's an awesome director. So thank you, वो कैमरे के पीछे। Anyways, so this was the thing regarding you, whatever you felt. Anything else you would like to share? I would like to share one story जिसने मेरी लाइफ आप कह सकते हो चेंज कर दी। हाँ जी, हाँ जी। आप मानो कि आपके सामने जो लड़की बैठी है, आपको लगता है शी इज़ वेरी गुड इन मैथ्स, राइट, एवरीथिंग। आई वॉज अ स्टूडेंट जो मैथ्स में लाइन पे पास होता था।
अच्छा टिल 5th क्लास। अच्छा माई डैड, उनको बहुत शौक था शुरू से मैथ्स का, ओके एंड ही ऑलवेज वांटेड कि मेरी बेटी है कि चलो मेरे से थोड़ा सा रहे मैथ्स में। होता है पेरेंट्स को होता है राइट देयर। तो मैं कभी ना उनकी चीज छोटी थी, ऊपर से मेरे को इतना पता नहीं था, तो मैं कभी मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं कहती थी कैसा सब्जेक्ट, और 5th क्लास तक था, मतलब इतना ज़बरदस्त मैं लाइन पे पास होती थी। एंड मेरे को होता था कि पापा की एक्सपेक्टेशंस इतने मार्क्स ही नहीं ला पाती। देन 6th में आई शिफ्टेड टू सीनियर स्टडी 2, सीनियर स्टडी 1 से। उधर क्या होता है, एवरी वीक देयर आर टेस्ट्स, राइट। तो एवरी मंडे मैथ्स का टेस्ट होता है 10 मार्क्स का। मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया, उसमें मेरे 10 और 10 आए। अच्छा तो आई वॉज वेरी, मतलब मैं शॉक हो गई थी देख के, हाउ इज दिस पॉसिबल। एंड विल यू बिलीव उस टाइम मेरे में बिल्कुल करेज नहीं था, बट आई स्टिल वेंट टू माई सर, उनका नाम है राजीव शर्मा। ओके ही इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। ओके आई वेंट टू दैट टीचर एंड सेड कि सर मेरी ना टेस्ट में पक्की बात की गलती होगी, Right. मेरे फुल मार्क्स नहीं आ सकते। Okay. पता नहीं, आई डोंट नो हाउ डिड आई से दैट, बट आई सेड इट टू। उन्होंने मेरे सामने दोबारा रीचेक करा एंड ही टोल्ड मी कि नहीं बच्चे, आपका टेस्ट ठीक है, यू गो एंड सिट बैक ऑन योर सीट, आपके फुल मार्क्स आए हैं। मैं बड़ी खुश, मैंने घर जाकर पापा को सब दिखाया, ये वो, मेरे को लगा टॉपिक खत्म हो गया। देन देयर वाज अ मीट एंड ग्रीट विद टीचर्स एंड पेरेंट्स कि नए बच्चे आए हैं तो टीचर्स को मिलना है। राइट। सर ने स्पेशली बोला अनुरीत के पेरेंट्स कौन है, सर ने बुलाया, राजीव सर ने। अच्छा मेरे पापा गए उनके पास, तो उन्होंने बोला मेरे को ना इसके साथ थोड़ी सी कंप्लेंट है। मेरे पापा बड़े हैरान कि 2 दिन तो आए हैं इसको स्कूल में आए को, इसने कंप्लेंट भी पैदा कर दी है। Okay. तो उन्होंने बोला कि ये ना खुद को अंडर एस्टिमेट बड़ा करती है। अच्छा मेरे को साथ में खड़ा किया था उन्होंने, तो ऐसे मेरा इंसिडेंट बताया कि ये मेरे पास आई है, मेरे को बोलती है कि मेरे मार्क्स पूरे नहीं आ सकते, आपने गलत चेक किया। ओके उन्होंने सारी बात बोली, ये सब पापा को बता के उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तेरे में पोटेंशियल देखता हूँ, मेरे को लगता है तो कुछ कर सकती है, तो खुद को पहला पॉइंट ये रख ले अपने पास, तो मेरे से पढ़ रही है, खुद को अपना कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सोचना है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। एक पॉइंट वो था। दूसरा उन्होंने मेरे को बोला था कि तेरे पापा का ड्रीम है कि तू मैथ्स में कुछ करे, उनको इंटरेस्ट है और तू कर सकती है, तो बड़े होकर एमएससी मैथ्स करनी है तूने गोल्ड मेडल के साथ। हाँ। और मेरे को आके तूने सर्टिफिकेट दिखाना और दिखाना कि सर देखो मैंने करा है। वाओ मैम मेरे को नहीं पता था उस टाइम व्हाट इज एमएससी मैथ्स, आई डिडंट नो कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है, ग्रेजुएशन 6th क्लास के बच्चे को क्या ही पता कुछ नहीं बताओ राइट। बट वो मेरे माइंड में था कि मैंने करना है, गोल्ड मेडल के साथ नहीं बट करना है मैंने। और आज मैं वो चीज़ अगर कर रही हूँ तो पापा के लिए कर रही हूँ और सर की दिखाई हुई डायरेक्शन पे चल रही हूँ। दैट्स सो स्वीट। एंड आई हैव अ ड्रीम कि बस मेरी एमएससी खत्म होगी ना तो पापा और सर को इकट्ठे बिठा के उनके हाथ में मैंने अपनी डिग्री देनी है कि ये मैंने आपके लिए करा है। आई सो दिस इज द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे अगर हूँ तो इन दोनों के कारण। you know, I could see her eyes twinkling. That's so yeah, that's very true that every गपशप में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि you listen to certain stories and you just become speechless. You just become कि अब आगे क्या है। I am full, my appetite is full. बहुत अच्छी गपशप हुई है और जो स्पेशली हमारा लास्ट सेगमेंट था, it was an inspiring true story of a young budding mathematician. So we wish you good luck and I hope that this very episode will reach to the hearts, all those hearts who love you, and all my viewers. गुरसीमा's गपशप के लिए आप भी आइए, साथ में हम चाय भी पियेंगे, and every Friday the guest day for Gursema's Gupshup. Gursema will wait and I hope you will enjoy the upcoming episodes with this budding mathematician. Till then, till the next episode and with the new guest, new face, new story and your own Gursema will be there every Friday for Gursema's Gupshup. Till then, take care. Thank you so much.